تو آئیے جانتے ہیں کہ دو چشمی ہے اور ہائے حوض کا درست استعمال الفاظ میں کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اردو زبان کے حروف تہجی میں 15 مفرد حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ دو چشمی ہے کو ملا کر مرکب حروف کی شکل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان 15 حروف کے علاوہ کسی بھی دوسرے حرف کے ساتھ دو چشمی ہے کو مرکب شکل میں استعمال کرنا غلط ہے، اور یہ حروف ہیں بے، پے، تے، ٹے، جیم، چے، دال، ڈال، رے، اڑے، کاف، گاف، لام، میم اور نون۔ تو یہ 15 حروف ہیں جن کے ساتھ دو چشمی ہے کو ملا کر اردو زبان میں مرکب شکل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو مفرد حروف ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ تو اپنی کٹی ہوئی شکل میں یعنی آدھی شکل میں دو چشمی ہے کے ساتھ ملتے ہیں، اور کچھ حروف جو ہیں وہ اپنی پوری شکل کے ساتھ دو چشمی ہے کے ساتھ ملتے ہیں۔ مثلا بے، پے، تے اور ٹے، جیم اور چے، یہ جو حروف ہیں ان کی آدھی شکل جو ہے، کٹی ہوئی شکل جو ہے، وہ دو چشمی ہے کے ساتھ مل کر اس طرح سے باری حروف یا باری آوازیں یا مرکب حروف بنتے ہیں۔ بے، پے، تے، ٹے، جیم اور چے، ان حروف کی یہ آدھی شکل اس کے آگے یعنی ان حروف کی کٹی ہوئی شکل کے آگے جب ہم اس طرح سے دو چشمی ہے ملائیں گے تو ان کی شکل یہ بنتی ہے، اور ان کو مرکب حروف کہا جاتا ہے، اور ان کی جو آوازیں ہیں ان کو باری آوازیں کہا جاتا ہے۔ بے کے ساتھ جب ہم دو چشمی ہے کو ملا کر لکھیں گے تو اس کی شکل یہ ہوگی، اور اس کو ہم پڑھیں گے ب۔ اسی طرح تے کے ساتھ جب ہے ملے گی تو یہ بنے گا تھ، اسی طرح ٹھ، ج اور چھ۔ اس کے بعد یہ جو حروف ہیں دال، ڈال، رے، ڑے، یہ 4 حروف جو ہیں یہ اپنی پوری شکل کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کی کلی شکل کے ساتھ دو چشمی ہے کو ملا کر یہ مرکب حروف بنائے جاتے ہیں۔ دال کے ساتھ دو چشمی ہے ملے گی تو یہ بنے گا د، پھر ڈال کے ساتھ دو چشمی ہے ملے گی تو یہ بنے گا ڈ، اسی طرح ر اور ڑ۔ اس کے بعد 5 حروف ہیں کاف، گاف، لام، میم اور نون، یہ بھی اپنی کٹی ہوئی شکل میں دو چشمی ہے کے ساتھ مل کر مرکب حروف بناتے ہیں۔ کاف کے ساتھ دو چشمی ہے ملے گی تو یہ مرکب حرف بنے گا کھ، اس کی آواز ہوگی کھ۔ اسی طرح گاف کے ساتھ دو چشمی ہے ملے گی تو یہ آواز بنے گی گ، اسی طرح ل، م اور ن۔ تو اس طرح یہ 15 مخصوص حروف ہیں جن کے ساتھ دو چشمی ہے کو ملا کر یہ 15 مرکب حروف بنائے گئے ہیں، جن کو باری آوازیں بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو اردو زبان میں اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ان 15 حروف کے علاوہ کسی بھی دوسرے حرف کے ساتھ دو چشمی ہے کو ملا کر مرکب شکل میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ دو چشمی ہے اور ہائے حوض کے استعمال کے 3 اصول ہیں یہاں پر، ان کو آپ یاد رکھیں۔ پہلا یہ ہے کہ اردو میں دو چشمی ہے مفرد حرف کے طور پر کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتی۔ دو چشمی ہے جو ہے یہ اردو زبان میں کسی بھی لفظ میں مفرد حرف کے طور پر استعمال میں نہیں آتی، اس لیے ہم، ہمارا، ہمیں، ہاکی، ہمالا اور حامی، ان کو یہ جو الفاظ ہیں ان کو دو چشمی ہے کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور دو چشمی ہے لفظ کے شروع میں آئی ہے، اس لیے غلط ہے۔ دو چشمی ہے جو ہے یہ اردو میں کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتی۔ چھوٹی ہے یا ہائے حوض کے ساتھ ان کو ہم لکھیں گے، ہم، ہمارا، ہمیں، ہاکی اور ہمالا۔ تو ان الفاظ کا جو درست املا ہے وہ چھوٹی ہے یا ہائے حوض کے ساتھ درست ہے، اور ان الفاظ کو اس طرح سے ہائے حوض کے ساتھ لکھا جانا چاہیے۔
नंबर 2 यानी दूसरा असूल है, किसी भी लफ्ज के दरमियान में दो चश्मी है मुफरद हर्फ के तौर पर अलग से इस्तेमाल नहीं होती। यानी दो चश्मी है जो है ये उर्दू ज़बान के अल्फाज में ना तो शुरू में अलग हर्फ के तौर पर आती है और ना ही किसी लफ्ज के दरमियान में अलग हर्फ के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए लाहौर, चूहा, चौधरी और जाहल ये जो 4 अल्फाज हैं, इनमें दो चश्मी है जो है इसको अलग से मुफरद हर्फ के तौर पर दरमियान में इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ये जो अल्फाज हैं इनका इमला गलत है। इन अल्फाज को इस तरह से हाय हवज़ के साथ लिखा जाना चाहिए, लाहौर, चूहा, चौधरी और जाहल। तो ये जो अल्फाज हैं यहां पर इनमें से लाहौर, चूहा और जाहल इनका इमला जो है वो हाय हवज़ के साथ दुरुस्त है, इसलिए इनको हाय हवज़ के साथ लिखा जाना चाहिए। और लफ्ज़ जो चौधरी है इसमें दो चश्मी है का इस्तेमाल दरमियान में हुआ है, लेकिन ये अलग से मुफरद हर्फ के तौर पर इसको यहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि यहां पर इसको दाल के साथ मुरक्कब हर्फ की सूरत में इस्तेमाल किया गया है। दाल है द, तो इसलिए यहां पर दाल है द की सूरत में इसको मुरक्कब हर्फ की सूरत में इस्तेमाल किया गया है। और चौधरी का ये जो इमला है ये दुरुस्त है। नंबर 3 तीसरा उसूल ये है जिससे हम अपने उर्दू की इमला को दुरुस्त कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि उर्दू अल्फाज का इमला भी दुरुस्त हो, तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त हो और जिन मानों में हम किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उस लफ्ज़ को हम उन्हीं मानों में दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए आपको ये तीसरा उसूल याद रखना होगा और वो है कि छोटी है और दो चश्मी है को एक दूसरे की जगह गलत इस्तेमाल ना करें। मसलन यहाँ पर हमारे पास चंद मिसालें हैं जिनसे हाय हवज़ और दो चश्मी है का दुरुस्त इस्तेमाल वाज़े हो जाएगा। मसलन पहला लफ्ज़ है फल, इसमें पे के साथ दो चश्मी है को मिलाकर मुरक्कब शक्ल में इस्तेमाल किया गया है और इस लफ्ज़ में दो हरूफ हैं, एक मुरक्कब हर्फ और दूसरा मुफरद हर्फ। पे है फ और लाम फाल। और अगर हम दो चश्मी है की जगह पर हाय हवज़ इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ इस लफ्ज़ का इमला तब्दील होगा बल्कि इसका तलफ़्फ़ुज़ भी बदल जाएगा और उसके मानी भी तब्दील हो जाएंगे और ये लफ्ज़ बन जाएगा पहल। और इसमें 3 मुफरद हरूफ हैं, पे, है और लाम। इसी तरह एक और मिसाल देखें, घर और गोहर। लफ्ज़ जो घर है इसमें गाफ को है के साथ मुरक्कब शक्ल में इस्तेमाल किया गया है, गाफ है ग। और इस लफ्ज़ में दो हरूफ हैं, एक मुरक्कब हर्फ और दूसरा मुफरद हर्फ, ग और रे, गार। अगर हम यहाँ पर हाय हवज़ को इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ इस लफ्ज़ का इमला बदल जाता है बल्कि इसका तलफ़्फ़ुज़ भी तब्दील हो जाएगा और उसके मानी भी तब्दील हो जाएंगे और यह लफ्ज़ बन जाएगा गोहर। और गोहर के बिल्कुल ही अलग मानी है और इसमें 3 हरूफ हैं, गाफ, है और रे, गोहर। इसी तरह दान और दाहन। लफ्ज़ जो दान है इसका मतलब है दौलत और दूसरा लफ्ज़ है दाहन, इसके बिल्कुल ही मुख्तलिफ मानी हैं। इसमें दाल को है के साथ मुरक्कब शक्ल में इस्तेमाल किया गया है, दाल है द और उसके साथ नून दान। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम हाय हवज़ इस्तेमाल करेंगे तो इसका इमला, तलफ़्फ़ुज़ और मानी तब्दील हो जाएंगे और ये बन जाएगा दाहन। इसी तरह लफ्ज़ है पहाड़। पहाड़ को अगर हम हाय हवज़ के साथ लिखें तो इसका इमला दुरुस्त है और इसमें 4 मुफरद हरूफ हैं, पे, है, अलिफ और अड़े, पहाड़। लेकिन जब हम हाय हवज़ की जगह पर यहाँ पर दो चश्मी है को इस्तेमाल करेंगे तो इसका इमला, तलफ़्फ़ुज़ और मानी तब्दील हो जाएंगे।
हाय हवस और दो चश्मी है को एक दूसरे की जगह गलत इस्तेमाल करने से इमला भी तब्दील हो जाता है और लफ्ज़ के मानी भी बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे लफ्ज़ है कहर, इसमें अगर हम है की जगह दो चश्मी है इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि काफ के साथ, काफ जो दो नुक्तों वाला काफ है, इसके साथ हम दो चश्मी है को मुरक्कब हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि इन 15 हरूफ के अलावा किसी भी दूसरे हर्फ के साथ दो चश्मी है को मुरक्कब शक्ल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो गलत होगा। तो यहाँ पर अगर हम हाय हवस की जगह अगर इसमें दो चश्मी है को इस्तेमाल करें तो वो गलत है। इसलिए गलत है कि काफ जो दो नुक्तों वाला काफ है, इसके साथ दो चश्मी है को मुरक्कब शक्ल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये लफ्ज़ जो है ये गलत है। इसी तरह लफ्ज़ शहर जो है, इसमें भी हम शीन के बाद हाय हवस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शीन के साथ दो चश्मी है को मुरक्कब शक्ल में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए शीन के साथ दो चश्मी है का इस्तेमाल गलत है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हाय हवस और दो चश्मी है के दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से पता चल गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।